Namaskar, my name is Dr. Vidhi Nagar, a Kathak student, teacher, performer, choreographer. And a very warm welcome in today's video to all of viewers. Today we are going to discuss Drishti Bhed, eye glances according to Abhinay Darpan, and as you know, Abhinay Darpan is written by Acharya Nandikeshwarji. So let's just start. There are 8 types of eye glances according to Abhinay Darpan. I am going to tell you names. समदृष्टि, सांची दृष्टि, आलोकित दृष्टि, प्रलोकित दृष्टि, निमीलित दृष्टि, अनुवृत दृष्टि, उल्लोकित दृष्टि, and the last one is अवलोकित दृष्टि. Let's start one by one eye glances and their uses. The first one is samdrishti. Samdrishti we are doing like this. Okay? When we will see not upward, not downward, not flash our eyelashes, we will see straight. That is samdrishti. जैसा मैंने अभी बताया, ना हम बहुत ऊपर देखेंगे ना नीचे देखेंगे. जब हम बिना पलक झपकाए देखते हैं तो वह समदृष्टि कहलाती है. And we are using in statue and surprise and lots of places where we use samadrishti. In all classical dances, when we are posing static or we come on sam, we always use samadrishti. मूर्ति, आश्चर्य इत्यादि में समदृष्टि का प्रयोग करते हैं. और सभी नृत्यों में हम लोग जब कोई पोज बनाते हैं, स्टैटिक पोज होता है या हम सम दिखाते हैं, वहां पर समदृष्टि का प्रयोग करते हैं. The second one is Sachi Drishti. Sachi means diagonal, like this. When we are using to see something from our corner of our eyes or like this, this is Sachi Drishti. जब हम तिरछी निगाह से किसी को देखते हैं या अपनी आंखों का प्रयोग हम आंखों के कोनों से देखने की कोशिश करते हैं, वह साची दृष्टि कहलाती है. इस प्रकार से साची दृष्टि का प्रयोग हम तिरछी निगाह से किसी को देखने में, गुस्से में देखने में, चोर की तरह देखने में करते हैं. We are using Sachi Drishti to see something special, something hiding diagonally, and lots of places we are using Sachi Drishti. The third one is Alokit Drishti. Alokit Drishti is like this. जब हम अपनी पुतलियों को चौड़ा करके चारों तरफ देखते हैं, that is आलोकित दृष्टि. When we are seeing like this, that is आलोकित दृष्टि. The uses of आलोकित दृष्टि are to faint, to look after everywhere. In तांडव आलोकित दृष्टि का प्रयोग हम चारों तरफ देखने, तांडव में और मूर्छित होने में इत्यादि में करते हैं. The fourth one is pralokit drishti. When we are using our eyes to see from right to left and left to right, that is pralokit drishti. जब हम अपनी आंखों का प्रयोग
दाहिने से बाएं और दाएं से बाएं देखने के लिए करते हैं तो वह प्रलोकित दृष्टि कहलाती है। The uses of प्रलोकित दृष्टि are to see from one side to other side, to be assume very clever, to be fool। प्रलोकित दृष्टि का प्रयोग हम करते हैं एक तरफ से दूसरी ओर देखने में, चलायमान वस्तु को देखने में, गतिशील वस्तु को देखने में, मूर्ख बनने में या फिर बहुत चालाक दिखाने में। तो ये थे प्रलोकित दृष्टि के प्रयोग। The fifth one is निमीलित दृष्टि, when the eyes are not fully opened, not fully closed, is half opened, that is निमीलित दृष्टि। जब आंखें ना तो पूरी तरह से खुली हो ना ही पूरी तरह से बंद हो, वो अध खुली हो, उस दृष्टि को निमीलित दृष्टि कहते हैं। Uses of निमीलित दृष्टि are to praying, जब तप और ध्यान में निमीलित दृष्टि का प्रयोग करते हैं, मूर्छा में, फेंट होने में इत्यादि में अध खुली आंखें निमीलित दृष्टि का प्रयोग करते हैं। The sixth eye glance is अनुव्रत दृष्टि, when we will see from upward to downward and in very fast motion like this, that is अनुव्रत दृष्टि। जब हम बहुत तेजी से ऊपर से नीचे देखते हैं तो वह दृष्टि अनुव्रत दृष्टि कहलाती है। अनुव्रत दृष्टि का प्रयोग हम ऊपर से नीचे देखने में करते हैं, किसी भी चीज को गुस्सा दिखाने में, क्रोध दिखाने में, लाइक दिस। वी आर यूजिंग अनुव्रत दृष्टि टू शो एंगर or to see something from upward to downward or downward to upward in different ranges, that is anuvrat drishti। The seventh one is ullokit drishti, when we are seeing upward, ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो वह दृष्टि उल्लोकित दृष्टि कहलाती है। Dear viewers, the uses of ullokit drishtis are to see upward, to see mountain, moon, bird, etc. That is ullokit। जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर देखने में प्रयोग करते हैं, पहाड़ देखने में, चंद्रमा देखने में, पक्षी देखने में इत्यादि में ऊपर जब देखते हैं तो उस प्रयोग को उल्लोकित दृष्टि के प्रयोग में इस्तेमाल करते हैं। The last and the eighth one is अवलोकित दृष्टि। अवलोकित दृष्टि is like this, when we are seeing downward, that is अवलोकित दृष्टि। जब हम नीचे इस प्रकार देखते हैं तो वह दृष्टि अवलोकित दृष्टि कहलाती है। The uses of अवलोकित दृष्टिस are to feel shy, to see downward or to see our limbs। अवलोकित दृष्टि का प्रयोग हम संकोच में, शर्माने में, नीचे किसी पड़ी वस्तु को देखने में और अपने अंगों को देखने में
प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग थे अवलोकित दृष्टि के। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 8 दृष्टिभेद सीखे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे सारे ही दृष्टिभेद जो कि अभिनय दर्पण के अनुसार है और आप प्रैक्टिस करेंगे। होप डियर व्यूअर्स very thoroughly and deeply you understand these all 8 eye glances which are according to Abhinay Darpan, and my suggestion is that you keep watching, keep practicing, stay at your homes, be safe, be healthy, be creative and be positive, and we will meet again in our next video. Till then, thank you. Namaskar.